Student, this is Narayan. Today we start with a new chapter, column and strut. Okay. What do you understand by strut? A structural member subjected to axial compressive force is called the strut. Okay. Strut may be vertical, horizontal or inclined. That means जहाँ पे भी axis पे compressive force लगता है, that is called axial compressive force. That is called strut. It may be vertical, horizontal or inclined. The cross-sectional dimensions of the strut are small. Then normally struts carry smaller compressive loads. Struts are used in roof truss or bridge trusses. This one is called strut. Okay. कंप्रेसिव फोर्स आप देख रहे हो यहाँ पे लग रहा है और वो एक्सिस पे लग रहा है. दैट इज कॉल्ड एक्सिस एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स. यहाँ पे भी एक्सिस पे लग रहा है, यहाँ पे भी एक्सिस पे लग रहा है. कॉलम, व्हेन द स्ट्रट इज वर्टिकल इट इज नोन एज कॉलम. जब भी स्ट्रट वर्टिकल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं. The cross-sectional area dimensions of the column are large. Cross-sectional dimension जो भी होता है column का वो large होता है. Strut में क्या होता है? Small होता है. Normally, the columns carry heavy compressive loads. तो column में क्या होता है? Heavy compressive loads वो bear करता है. Okay? और carry करता है. Then columns are used in concrete and steel buildings. What is the difference between the strut and column? The strut may it carry light axial compressive force. Column may it carry heavy compressive force. Then strut may be vertical, horizontal or inclined, and column may it is always vertical. Strut में the cross-section dimensions of the strut are small. The cross-section dimensions of the column are large. And strut कहाँ पे use होता है? It is used in roof trusses or bridge truss, and it is used in concrete and steel buildings. Okay. रेडियस ऑफ गायरेशन. फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट कभी बनता है ओके तो वो उसके स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं. ओके तो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं उससे एक ऑब्जेक्ट बनता है. दैट इज कॉल्ड लैमिना. तो लैमिना में अलग अलग फॉर एग्जाम्पल हम जो भी स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स है उसको सेम एक एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे ले. ओके उसका डिस्टेंस वो एक्सिस से सेम हो. ओके जो डिफरेंट एलिमेंट है वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन. The distance from the given axis at which if all the small elements of the lamina are placed, the moment of inertia of the lamina about the given axis does not change. That means ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहने वाला है. अलग नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है उसको अलग अलग डिस्टेंस पे दिया है. दैट इज R1, R2, R3. दिस वन इज A. बट ये B में क्या है? हमें ऐसे एलिमेंट लेना है जिसका डिस्टेंस एक्सिस से सेम हो. ओके तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो वो जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन. Mathematically K is equal to under root I by A. I that means moment of inertia and A that means cross section area, or I is equal to A K square. ये अंडर रूट निकाल दिया तो क्या आएगा? ये स्क्वायर यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगाए, यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो क्या होगा? K square is equal to I by A. तो I is equal to A K square वो आपको फॉर्मूला मिलेगा.
where K is equal to radius of gyration, I is equal to moment of inertia, and E is equal to cross-section area. Slenderness ratio, that is lambda. What do you understand by slenderness ratio? Okay, is equal to formula है effective length of the column divided by minimum radius of gyration. So if lambda is equal to effective length, that is L, E, or K minimum, that means minimum radius of gyration. If the lambda for the column is more, lambda ज़्यादा है, तो its load carrying capacity will be less. ओके तो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी? लैम्डा ज्यादा है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी. लैम्डा कम है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी. Then long column. When the length of the column is more as compared to its cross-section area. That means, for example, आपके पास कॉलम है और उसका जो भी लेंथ है वो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है उससे ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग कॉलम बोलते हैं. For long column is equal to LD by D greater than or equal to 12 or lambda is equal to LE by K minimum greater than or equal to 50. ये LE by D greater than equal to 12 है और lambda कितना होगा? is equal to LE by K minimum greater than or equal to 50 where LE is equal to effective length of column, D is equal to least lateral dimension of the column, and K minimum is equal to minimum radius of gyration. For mild steel, if lambda is greater than or equal to 80, it is called long column. Short column. When the length of the column is less as compared to its cross-section areas, it is called the short column. For short column, LE by D, that is less than 12, और इसमें लैम्डा कितना होगा? लैम्डा is equal to LE by K minimum less than 50. Crushing load. In case of short columns with increase in axial compressive load, the compressive stresses increases. After some load, the column fails by crushing. The load at which the short column fails by crushing is called the crushing load. आप फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट कॉलम की बात करें तो उसमें आप जब भी एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स बढ़ाते हो ओके तो उसमें क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है. उसकी वजह से क्या होता है? जो कॉलम होता है वो क्रशिंग से फेल होता है. ओके The load at which the short column fails by crushing is called the crushing load, and the stress corresponding to the crushing load is called the crushing stress. The next one is crippling load or buckling load or critical load. In case of long column, देखो ये शॉर्ट कॉलम की बात हो गई, अभी लॉन्ग कॉलम की बात आएगी. इन केस ऑफ लॉन्ग कॉलम्स विथ इंक्रीज इन एक्सियल कंप्रेसिव लोड, the compressive stress is increased. After some load, the column starts buckling or bending, and the bending stress also produces. Finally, the column fails by buckling or bending. तो लॉन्ग कॉलम में क्या होता है? आप जब भी एक्सियल कंप्रेसिव लोड बढ़ाते हो तभी कंप्रेसिव स्ट्रेस बढ़ता है. उसकी वजह से क्या होता है? जो भी आपका कॉलम होता है वो बैंड होना स्टार्ट होता है. ओके जो भी स्ट्रेस उत्पन्न होता है दैट इज कॉल्ड बकलिंग स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, और जो भी लोड होता है दैट इज कॉल्ड बकल. जो भी प्रोसीजर होता है बेंडिंग जो भी हमारे पास बकल यानी बैंड होने के बाद जो भी स्ट्रेस उत्पन्न होता है दैट इज कॉल्ड बैंडिंग स्ट्रेस.
The load at which the long column starts buckling is called the buckling load. Okay, the load जो भी लोड दिया है, जिस लोड के बाद बकलिंग स्टार्ट होता है, that is called buckling load or crippling load. And for the long column, direct stress is negligible as compared to the bending stress. लॉन्ग कॉलम में क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस आप निग्लिजिबल होता है, उसका वैल्यू बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू द बेंडिंग स्ट्रेस. The buckling of the column depends upon the following factors. First, amount of load, that means कितना लोड कॉलम पे आ रहा है, उस पे वो बकलिंग डिपेंड करता है. लेंथ ऑफ कॉलम, लेंथ कितना है कॉलम का वो. देन एंड कंडीशन ऑफ द कॉलम, एक एंड पे फिक्स है, फ्री है, क्या है, दोनों फिक्स है. देन दोनों सिंपल सपोर्ट है, दोनों एंड पे क्या प्रोवाइड किया है, तो वो भी डिपेंड करता है ऑन एंड कॉलम्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉलम्स. कॉलम्स में जो कॉलम जिसमें खड़ा है वो सपोर्ट फिक्स है, सिंपल सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट है, उस पर भी डिपेंड करता है. देन क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ द कॉलम, क्रॉस सेक्शन डायमेंशन कितना है. ओके, देन मटेरियल ऑफ द कॉलम, मटेरियल का कॉलम का मटेरियल कौन सा यूज हुआ है उस पर भी बकलिंग डिपेंड करता है. Column and conditions and effective length. So, it may consider the following four and conditions. Both ends are hinged, both ends are fixed, one end fixed and one other is hinged, one end is fixed and other is free. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार कॉलम दिया, चार कंडीशन दिया है. उसमें फर्स्ट केस में क्या है, दोनों एंड जो है दैट इज हिंज, तो उसपे जो भी इसका इफेक्टिव लेंथ रहेगा दैट इज एल इज इक्वल टू एल. इसका मतलब ये है कि दोनों साइड हिंज सपोर्ट प्रोवाइड किया है, तो लेंथ इसका जो भी आफ्टर बैंडिंग जो भी लेंथ है वो सेम ही रहने वाला है. Where L is equal to actual length of the column, L is equal to effective length of the column. Then next, both ends fixed. बोथ एंड्स फिक्स्ड है, तो यहाँ पे दोनों एंड फिक्स्ड है कॉलम के, तो उसमें क्या होगा, लेंथ एल इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, एल इज इक्वल टू एल बाई टू. दैट मीन्स लेंथ का हाफ हो जाएगा, जो भी इफेक्टिव लेंथ है वो हाफ हो जाएगा ड्यू टू बेंडिंग. ओके, देन नेक्स्ट वन इज बोथ वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज. तो एक एंड पे क्या है, फिक्स्ड है, दूसरे एंड पे क्या है, हिंज है, तो उसका लेंथ एल इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ एल इज इक्वल टू एल बाय अंडर रूट 2. ओके, देन वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री. तो वन एंड फिक्स्ड है और अदर इज फ्री. वन फिक्स्ड है, अदर फ्री है, तो लेंथ कितना होगा, एल इज इक्वल टू 2l. लेंथ बढ़ जाएगा ड्यू टू बॉन्डिंग. ओके, कितना बढ़ जाएगा, दैट इज 2l. Then Euler's formula for the crippling loads, okay, or bending load. PE is equal to pi square EI by L square, where PE is equal to Euler's crippling load. Then E is the modulus of elasticity or elasticity of or modulus of elasticity. Then next, I is equal to moment of inertia, L is equal to effective length of the column. Derive the Euler's formula for the both ends of the columns are hinged. तो आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना है कि both ends hinge है, तो Euler's equation क्या होगा. The figure shows a column of length L and uniform section area A hinge at both the ends A and B, and P is the crippling load or bending load at which the column has just buckled or bent. Considered any section axis, हमने एक axis section consider किया है at a distance of x from support B. Okay, y is the deflection at the section. This one is the deflection at the section. Okay,
is given by moment is equal to कितना आएगा, moment is equal to minus pi। तो ये सेक्शन पे मोमेंट मिलेगा p इंटू कितना है डिस्टेंस y, दिस डिस्टेंस इज y। ओके, तो यहाँ से आपको ये सेक्शन पूरा लेना है, तो आपको मोमेंट कितना मिलेगा p इंटू वाई। ये सेक्शन की बात है, ये कॉलम की बात नहीं है, ये कॉलम का जो भी सेक्शन है ना उसकी बात है कि बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन इज गिवन बाय, ये सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट लगेगा, दैट मीन्स ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल कॉलम है, फिर आफ्टर बेंडिंग ये कॉलम है। ओके, तो ये कितने डिस्टेंस पर बैंड हुआ या उसमें कितने डिस्टेंस तक वो ये डिस्टेंस कौन सा है आफ्टर बैंडिंग, कोई भी एक सेक्शन ले तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है y है, तो हमें बैंडिंग मिलेगा मोमेंट मिलेगा p इंटू कितना मिलेगा ये डिस्टेंस y, और एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव। तो मोमेंट इज इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी वाई, तो ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। General solution of this differential equation is, differential equation करते हैं हम तो क्या होगा y is equal to c1 cos under root, ये सब थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, y is equal to c1 cos under root p divided by ei x plus c2 sin p divided by ei x, this one is the equation number A। Then where c1 and c2 are the constants of the integration when x is equal to x is equal to 0 and y is equal to 0, जब भी x की वैल्यू 0 रखते हो y की वैल्यू 0 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे x की 0 वैल्यू रखी तो cos 0 is equal to 1 and y की वैल्यू 0 रखी तो क्या मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू 0 रखी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 0 रखी तो क्या मिलेगा हमें, when x is equal to 0 y is equal to 0 c1 is equal to 0। ओके, तो साइन 0 कितना आता है, वो तो 0 ही आता है, और c1 फॉर एग्जांपल x y दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दी तो c1 cos 0 कितना आएगा, तो c1 cos 0 ये है बराबर, तो c1 cos 0 कितना आएगा 1, तो c1 की वैल्यू कितना आएगा अगेन 0 आएगा। when x is equal to l y is equal to 0, अभी x की वैल्यू आपको क्या लेनी है, l लेनी है, और y is equal to 0 तो क्या आएगा, y is equal to 0 है तो c2 इंटू साइन अंडर रूट p डिवाइड बाई ई आई इंटू l। ओके, ये आपको मिलेगा x is equal to l y is equal to 0, तो c1 वाली जो टर्म है अभी क्या करना है आपको, c1 का वैल्यू यहाँ पे रख देना है, तो यहाँ पे मैंने c1 का वैल्यू 0 रख दिया तो हमारे पास टर्म कौन सी बची, यही बची, तो अभी y का जो भी इक्वेशन है उसमें आपको क्या करना है, 0 रखना है, y is equal to 0 और x is equal to l रखना है, तो y is equal to 0 रखेंगे और x is equal to l रखेंगे तो ये फॉर्मूला बचेगी, ये तो 0 ही हो गया, c1 is equal to 0 है, तो क्या मिलेगा, 0 is equal to c2 is equal to sin under root p divided by ei into l। This is possible if c2 is equal to 0, in which case the column has not band at all। This is possible if C2 is equal to 0, okay, in which case the column has not bent at all, or sin P divided by EI into L is equal to 0। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू कौन सी है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ओके, L is equal to under root P divided by EI is equal to 0 कब होगा, जब साइन की वैल्यू जो भी है वो साइन की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई होगा, तभी साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 कभी होगी, जब ये साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई वो सब होगा तभी होगी।
उसका मतलब ये है कि आपके पास पाई 2 पाई 3 पाई वगैरह हो तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ओके, तभी हम ले सकते हैं ना, यहाँ पे 0 क्यों रखा डायरेक्टली, तो 0 इसीलिए रखा कि साइन 0 का भी होता है, तो पाई 2 पाई 3 पाई लेंगे तभी साइन 0 होगा। तो इसीलिए जी यहाँ पे 0 इज इक्वल टू अंडर रूट पी डिवाइड बाई ई आई इंटू एल ले लिया। तो टेकिंग द लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू एल डिवाइड अंडर रूट पी डिवाइड बाई ई आई is equal to pi, that is p divided by ei is equal to pi by l, p divided by ei is equal to pi square l square, then p is equal to pi square ei divided by l square. That is your Euler's equation. Okay, thank you.